Hey guys, welcome back to my channel. I am Anushka Gupta and I am scoring 650 marks in NEET 2022. And today I am going to share my drop year story. Let's begin it from 12th September 2021 when I gave my first attempt. तो मैं एग्ज़ाम से बाहर निकली एंड मुझे पता था मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं हुआ है. मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हुआ है एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाट हैपेंड इन द एग्ज़ाम. उसके बाद कम से कम 2 या 3 दिन तक मैंने अपना रिज़ल्ट चेक नहीं किया. मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए क्योंकि मेरा मन नहीं था टू लिव थ्रू इट अगेन और टू फेस द फैक्ट दैट मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं. 2-3 दिन बाद हिम्मत करके मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए एंड व्हेन आई सॉ कि मेरे मार्क्स 560 आ रहे हैं आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड आई जस्ट डिडंट नो कि मैं क्या फील करूँ या क्या सोचूँ या आगे जाके क्या करूँ एंड अपने पेरेंट्स को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊँ. बेसिकली बिकॉज आई न्यू दे वुड बी डिसअपॉइंटेड अ लिटिल बिट बिकॉज आई वुडंट गेट अ वेरी गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. सो आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू फेस देम. उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपने पेरेंट्स को बताया. दे वर वेरी सपोर्टिव. माई मदर वॉज वेरी सपोर्टेड. उनने मेरे को समझाया कि इवन इफ आई वॉन्ट टू टेक अप अ कॉलेज they'll support me and they'll let me go, and they started researching for any private or any college for the borderline score. और मेरी मॉम ने मेरे को ये भी समझाया that even if I decide to take a drop, which I was thinking about, she told me that it is not bad. It is very good that I am at least thinking about giving another attempt. And मेरे पास इतना courage है कि मैं एक और attempt देने का सोच पा रही हूँ. So she supported me. She told me once a story about her as well. जब back in the days when she gave her PMT exam, सब लोग तब 2 या 3 ड्रॉप ले ही लेते थे because it used to be common and the exam used to be way more tough for the people at that time. So she told me it is not bad, and look at the people who are doctors at this point like today, and they are doing so well and they have taken 1 drop, 2 drop. It doesn't matter because they are a good doctor now. So I felt like whatever she told me was right and maybe I could give it another shot. But there is one thing, मैंने ये बात बहुत लोगों को बताई नहीं है, but after the exam for about a week or 3-4 days to about a week, whenever I woke up from sleep like the next day, मेरे को ऐसा लगता था जैसे ये जो भी हुआ वो सब एक बुरा सपना था. एंड आई यूज्ड टू गो एंड सिट एट माई टेबल एंड थिंक कि मेरे को और पढ़ाई करनी चाहिए सो दैट मेरे साथ एग्ज़ाम में ऐसा ना हो और मैं इतना पैनिक ना करूं और मेरा एग्ज़ाम बेटर जाए. बट थोड़ी देर में मेरे को रियलाइज़ होता था कि एग्ज़ाम हो चुका है एंड एवरीथिंग दैट हैड टू बी हैड टू हैपन हैज़ हैपेंड. सो आई जस्ट थॉट I will not think about this for about a month and give myself the break that I need. And I think I recommend it for everybody who's thinking of taking a drop after the result of this year. Just give yourself a 1-month break or a break for some time. Go on a trip, have some time off with your family and friends. Don't look at the books again. Ekdam se mat start karo because you will get exhausted very soon. So just आराम से think about it, face your result, face whatever you did wrong. उसको सोचो थोड़ा सा, write it on a paper whatever the mistakes you feel you did in your attempt. That is something I did. मैंने 1 महीने का टोटल ब्रेक लिया. उसके बाद मैंने डिसाइड किया that I'll go for a drop and see what is the best that could happen. बहुत लोग ये बोलते हैं कि ड्रॉपर्स टॉप नहीं कर सकते या बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते अगले अटेम्प्ट में. बट आई जस्ट वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग. एंड जो भी मेरे बेस्ट मार्क्स हो सकते थे, जो भी मेरा 100% हो सकता था, मैं बस वो देखना चाहती थी. एंड आई वेंट ऑन फॉर इट. सो देर आर 5 थिंग्स दैट हेल्प्ड मी इन माई ड्रॉप ईयर एंड आई एम गोइंग टू शेयर देम टुडे. सो पॉइंट नंबर 1 बीइंग, जब मैं हॉस्टल पहुंची I started watching some movies and TV shows. Yes, you heard that right. I watched some movies and TV shows along with my studies. Don't get me wrong, I do not recommend this to everybody, but if you have that self-control, you can do it. So मैंने
एक शो था विच इज़ अबाउट अ डॉक्टर एंड हिज लाइफ, एंड एवरी एपिसोड हैड अ केस वेयर ही यूज टू सेव लाइफ. तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दैट एपिसोड एज अ रिवॉर्ड. व्हेन आई यूज टू कंप्लीट माई टारगेट फॉर द डे, I used to watch an episode, or if I had more time, or on a Sunday, I used to watch a motivational movie. Not any movie, but a motivational movie or a sports film, so that I feel motivated. And उसके बाद जो 1 या 2 घंटे मेरी जो focus and with confidence जो पढ़ाई होती थी, that used to be amazing. So I recommend this to people who can do it, who can somehow manage to watch a film or a movie without being distracted. Only then you can, otherwise you can watch a video of smaller duration. But I did this very honestly, and this is point number 1. Moving on to point number 2, which is self studies more than classes. Yes, if you are in your drop year, you should definitely do more self study than classes, because you have studied the syllabus once. You have the basic knowledge for each chapter. जो भी चैप्टर मुझे वीक लगा, मैंने सिर्फ उसकी क्लासेस अटेंड करी हैं. आई एनरोल बैक इन एलन, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को अच्छे से बता दिया था दैट इफ आई एम गोइंग टू टेक अ ड्रॉप, आई एम गोइंग टू टेक इट ऑन माई टर्म्स, आई एम गोइंग टू डिसाइड व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी क्लासेस के लिए नहीं जाऊँगी कोचिंग. मैंने सिर्फ कुछ क्लासेस फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री फॉलो किया, एंड बाकी टाइम सिर्फ सेल्फ स्टडी में लगाया. जो भी मुझे लगता था कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कम की है, उसमें मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस इंक्रीज करी. जहाँ मुझे लगता था कि मुझे एनसीईआरटी और थरोली रीड करनी है, मैंने वहाँ टाइम दिया, रादर देन क्लासेस देखना हर चैप्टर की बार बार. दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज म्यूजिक. सो आई हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद म्यूजिक. मैं पढ़ते समय भी कई बार म्यूजिक सुनती हूँ, या फिर ब्रेक्स आफ्टर स्टडिंग फॉर अबाउट एन आवर. When you take a break for 5 minutes, if you hear music, you'll just feel better, you'll feel calm, and you can work a lot efficiently after that. So I had a motivational music ka playlist, which is my own playlist. I have combined it, and I just loved it. I just listened to it whenever I could. मतलब जब भी मेरे को थोड़ा लो फील होता था, मैंने अपने हर एग्ज़ाम, अपने हर माइनर टेस्ट्स के पहले, जाने से पहले 10 मिनट ईयरफोन लगा के वो म्यूज़िक सुना है. एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प मी अ लॉट. एंड इफ़ यू एनी ऑफ यू लाइक्स टू लिसन टू म्यूज़िक, इट इज़ जस्ट वेरी गुड थेरेपी सेशन बिफोर अ टेस्ट और एन एग्ज़ाम, क्योंकि आपके दिमाग को इतना काम कर देता है. एंड आप जो अननेसेसरी स्ट्रेस होता है एग्ज़ाम के पहले, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैंने इतना ही पढ़ा है, मैंने बायो किया नहीं किया, वो सब चला जाता है. एंड गाना सुनने के बाद जब आप एग्जाम में बैठते हो, यू फील काम. आई यूज टू फील वेरी काम. एंड देन मैंने जो एग्जाम्स दिए हैं, आई हैव सीन द इम्प्रूवमेंट. वो 1-2 क्वेश्चन जो मैंने हड़बड़ी में पहले गलत किए थे, वो मैंने जब मैं काम हूँ और जब मैं फोकस्ड हूँ तब गलतियाँ नहीं करी. सो दैट इज पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 4, फ्रेंड्स. येस, फ्रेंड्स. So I had a very good group of friends in my hostel, and on phone calls as well, because I feel like friends are not a distraction if you choose the right group of friends. ऐसा नहीं कि friends आपको घुमाने ले जा रहे हैं and you're just chilling. Friends who are dedicated to the same goal, who want to study, who want to get more marks and working towards the same direction as you are. ऐसा नहीं है कि सेम मार्क्स आने वाले दोस्त बनाओ या कम मार्क्स या ज़्यादा मार्क्स. जस्ट मेक अ फ्रेंड ग्रुप जो आपको भी पुश करे और खुद भी आगे बढ़ने की कोशिश करे. सो आई हैड दिस ग्रुप. हम लोग एक दूसरे के साथ लंच में, डिनर में बायो डिस्कस कर लेते थे. कुछ क्वेश्चंस जो हमें अच्छे लगते थे जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर देते थे. बिकॉज ऑफ विच काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने नीट में भी फेस किए, और मेरे को उनके आंसर इसलिए याद थे क्योंकि मैंने अपने दोस्तों के साथ वो डिस्कस किया हुआ था. सो देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम्स, इवन इन द प्रेपरेटरी फेज, जब आप टेस्ट देते हो, उसमें जो क्वेश्चंस होते थे वो बहुत रिपीट होते हैं. जब आप उनको एक बार याद कर लेते हो, वो अगले टेस्ट में जब आपको दिखते हैं, आपको बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ, ये मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था या मैंने उसको समझाया था, विच इज़ वेरी हेल्पफुल. सो हैविंग द राइट group of friends is one thing that really helped me.
एंड दे यूज्ड टू पुश मी, एंड हम लोग एक दूसरे के मार्क्स से जेलस नहीं होते थे, बट एक दूसरे को समझाते थे कि हाँ मेरे मार्क्स कम आए हैं या मेरे मार्क्स ज़्यादा आए हैं, एंड सामने वाला भी डिड द सेम फॉर एवरी वन ऑफ अस. सो नाउ पॉइंट नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अपने पेरेंट्स या अपने कोई मेंटोर या फिर अपने टीचर्स और सेल्फ टॉक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें. टॉक टू देम व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो, जस्ट कॉल देम, जस्ट आस्क देम कि हाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा. बी ऑनेस्ट. ऐसा नहीं होता कि हर कोई हर दिन सब कुछ पढ़ता है. जस्ट बी ऑनेस्ट एंड टेल देम कि हाँ मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, या फिर उनको अपने पास बुला लो, या इफ़ यू आर नियर देम जस्ट सिट बाय देम, उनके पास बैठे रहो थोड़ी देर. यू विल जस्ट फील नाइस. एंड फॉर योर मेंटर्स जस्ट स्टे कनेक्टेड. तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनसे पूछो, उनको बताओ कि मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, मैंने क्या गलती करी, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, या फिर सम गाइडेंस फ्रॉम देम. आस्क योर टीचर्स, सर मैंने क्या गलती करी, या मुझे कहाँ सही करना चाहिए अपना प्रिपरेशन, एंड कितनी देर पढ़ना चाहिए, या कौन सी बुक्स करनी चाहिए. जस्ट आस्क देम एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. दैट रियली हेल्प्स अ लॉट. सेल्फ टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो एक ड्रॉप ईयर में, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग दैट विल टेक यू बैक. जब भी आप एक बॉटम लो हिट करोगे, एंड आप करोगे क्योंकि एवरीबडी फेसेस दैट. जब हम ड्रॉप लेते हैं या जब हम पढ़ भी रहे होते हैं 11th-12th में भी, तो एक फेज आता है जब आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता. यू आर जस्ट एग्जॉस्टेड, यू जस्ट फील लाइक हम ये क्यों कर रहे हैं, मेरे को दोबारा नहीं पढ़ना, मुझे ये NCERT दोबारा नहीं देखनी, बट यू हैव टू डू इट. सो एट दैट पॉइंट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बाय योर सेल्फ. हमेशा कोई अवेलेबल हो ऐसा नहीं होगा, बट इफ़ यू लुक इन द मिरर और यू जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, गो एंड सिट इन अ पार्क एंड जस्ट टॉक टू योर सेल्फ. लोगों को बोलने दो कि आप पागल हो, बट अपने आप से बात करो. अपने आप को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता. वो आपको पता है कि आपकी गलतियाँ क्या हो रही हैं या आप क्या चीज़ नहीं कर रहे हो. जस्ट फोकस ऑन दैट, टॉक टू योर सेल्फ. आपको अपने आप अपने आंसर्स मिल जाएंगे. आई यूज टू लुक इन द मिरर एंड टॉक टू माई सेल्फ. लाइक रात में 5 मिनट सोने से पहले आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ कि हाँ आज मैंने ये टारगेट सेट किए थे, इसमें से मेरे इतने ही टारगेट्स कंप्लीट हुए, जो नहीं हुए वो मुझे कल करने हैं. एंड वट एवर इज द स्केड्यूल आई यूज टू रिसाइट इट टू माई सेल्फ. And this is what I did, and every point out of these helped me seriously a lot. So these are the main points, and the general points being you have to stay consistent, you have to stick to NCERT, like you have to stick to NCERT only for bio and for chemistry as well. And if you have a phone, just stay a little detached from social media a little, because it is necessary. You need to be focused. You should not spend time इधर उधर, क्योंकि थोड़ा फोकस बना के रखोगे तो फिर अपने आप काम होगा. Apart from this, I think I covered a lot. Being consistent is very important. ऐसा नहीं कि एक दिन में 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन कुछ पढ़ा ही नहीं, कि इतने खुश हो रहे हैं कि हमने आज 12 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन कुछ नहीं पढ़ा. सो डू नॉट डू दैट. आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स द डेज व्हेन आई डिड नॉट स्टडी एट ऑल. ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जब आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो या आपने अपनी बुक को हाथ ही नहीं लगाया. सो आई थिंक देर आर वेरी वेरी फ्यू डेज, आई थिंक आई कैन काउंट देम, एंड वेरी फ्यू डेज जहाँ मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा पूरे दिन में. सो यू शुड नॉट डू दैट. So that is it for this video. I hope you liked it. If you do give it a thumbs up, comment below and share it with your friends, to anybody who needs this. Subscribe to the channel if you want to, and I'll see you on the next one. Till then. Also, if you guys haven't already, go follow me on Instagram, and I'm going to put my notes on my Telegram channel. Both the links are in the description below. And also the music playlist that I was talking about in the video, I'm also putting up the link for it. Go and check it out.